Hello students, how are you all? Hope you all are good. Today I am here for an important announcement, and the announcement is that your summer vacation starts from today. That is from 27th May to 5th July. Very excited? You must have planned several things for your summer vacation. No issues. Go ahead, do everything, whatever you have planned. But don't forget to do your summer vacation holiday homework. Your mentors have worked very hard to compile it for you. It is very important to do the summer vacation holiday homework because this year we are going to give 10% weightage to this homework in first term examination. So do it honestly and submit it timely. My dear students, I want to tell you that summer vacations are the best time to enhance ourselves, to polish our skills, which we cannot do throughout the year. This is the right time to grow as a student, to grow as a person, and to grow as an individual. So don't waste this time. This is very precious. Today I'm here to give you 8 tips for these summer vacations. First, daily wake up timely in the morning between 6 to 7. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 9 बजे सो के उठ रहे हैं, 10 बजे सो के उठ रहे हैं या 12 बजे सो के उठ रहे हैं. No, that is not the right time. And it is not good for health also. There is an old saying, आपने पहले भी सुनी होगी. Early to bed, early to rise makes a man and woman healthy, wealthy and wise. Second, daily do exercise. रोज सुबह एक्सरसाइज करनी है. From last 2 months हम रेगुलरली आपको योगा की वीडियोस भेज रहे हैं, डांस की भी वीडियोस भेज रहे हैं, जिसमें एरोबिक्स भी है, बहुत अच्छे अच्छे योगासन भी हैं. आपकी योगा मैम ने सब आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिया है. आप उन सब को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे और फिट रहेंगे. There is an old saying, it is health that is real wealth, and you cannot enjoy materialistic wealth if you are not in good health. So, my dear students, it is very important to maintain good health. It can be maintained only with the help of exercises, yoga, athletics, whatever you want to do. So, remain fit and healthy. Third, daily manage your room. It is your duty, not your mom's duty. आपने रोज अपना रूम सेट करना है. ऐसे नहीं होना चाहिए कि खिलौने यहाँ बिखरे हुए हैं, बुक्स वहाँ फैली हुई हैं, क्लोथ्स वहाँ पर हैं. ऐसे नहीं. सब बुक्स शेल्फ में, टॉयज बॉक्स में, क्लोथ्स अलमीरा में, बेडशीट प्रॉपरली इंटैक्ट. Your room should be fully neat and clean. There is an old saying, one who maintains cleanliness keeps away all diseases. So my dear students, you must cultivate a taste for cleanliness. You're getting my point? You must cultivate a taste for cleanliness. Fourth, daily give 1 hour to your weak subject. कभी कभी ऐसा होता है ना
कि किसी सब्जेक्ट में हमारे अबव 80% आते हैं या अबव 90% आते हैं, लेकिन कुछ एक दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमारे 50s में आ जाए मार्क्स या 60s में आ रहे हों मार्क्स, हल्के से थोड़े से कम आ रहे हों, तो हमें इस सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रेस देना है, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि वो भी उस अपर सब्जेक्ट्स में जिनमें आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं इंक्लूड हो जाए। ठीक है? There is an old saying, success is less about luck. Success is more about practice. So my dear students, keep practicing more and more, keep practicing more and more, and you will achieve the success. Fifth, daily help your mother in household works. इसके करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक, आपकी मम्मी की हेल्प हो जाएगी, दूसरा, उनको बहुत अच्छा लगेगा, और तीसरा, आपको ढेर सारे काम आ जाएंगे घर के, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना? माँ की तो जितनी सेवा की जाए उतना कम है ना। There is an old saying, ask not what your mom can do for you. Ask not what your mom can do for you. Ask what you can do for your mom. So my dear students, always help your mother. Always. Okay? Sixth, daily do your homework. Properly divide it, plan it accordingly so that you can finish it timely and submit it timely. Time management is life management. जिसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया वो जिंदगी में कभी अनसक्सेसफुल नहीं होता। There is an old saying, you can never rotate the time back to your favorite past, or you can undo your mistakes. You can only move with it. So my dear students, time management is very important because lost time is never going to come again. Seventh, play games but in limited time frame. खेलो, खूब खेलो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए प्लानिंग करो, फिक्स करो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक खेलना है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। खेलने के लिए कोई मनाही नहीं है। इनफैक्ट गेम्स आर वेरी गुड फॉर फिजिकल ग्रोथ. गेम्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज बेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स. अब आप बोलेंगे मैम अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का भी चक्कर चल रहा है, मम्मी पापा ज़्यादा इधर बाहर नहीं आने जाने देते, तो हम क्या खेलेंगे? डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो आप घर में ही खेल सकते हैं। आपकी टीचर्स ने मिलके एक वीडियो बनाई है जिसमें ये सारी गेम्स डेमोन्स्ट्रेट करी हैं। आप उसको देखिएगा, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और अपने मम्मी पापा से पूछना, उन्होंने बचपन में ये बहुत खेले होंगे। वॉच दैट वीडियो of your teachers. You will get plenty of ideas and you will enjoy watching it. Just watch it. Amazing work your teachers have done for you. Eighth, daily sit with your grandparents. Spend some time with them. दादा दादी, नाना नानी, उनके पास बैठिए, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और उनको बोलिए हमारी छुट्टियां हैं, हमें स्टोरी सुनाइए। आई एम श्योर उनकी स्टोरी में कोई ना कोई ऐसी शिक्षा जरूर होगी जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। बहुत एक्सपीरियंस है उनको, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए ना मेरे प्यारे बच्चों। समर वेकेशंस की बात हो रही है, कहानी की बात हो रही है, तो क्यों ना आज अभी इसी वक्त से शुरुआत की जाए। तो आज आपकी प्रिंसिपल मैम आपके समर वेकेशंस की आपको पहली कहानी सुनाएंगी। राइट? आर यू रेडी टू लिसन?
Here we go. एक बार की बात है, राजा विक्रम के 100 पुत्र थे और उनकी उम्र ढलती जा रही थी। उनको अगले राजा का चुनाव करना था, उत्तराधिकारी की घोषणा करनी थी। उन्हें ऐसा राजा चाहिए था जो पूरी प्रजा का ध्यान रखे, ख्याल रखे, उन्हें खुश रखे और राज्य का भी विस्तार करे। कहने का मतलब है कि एक परफेक्ट राजा वो चुनना चाहते थे, लेकिन वो अपने 100 के 100 पुत्रों से बराबर प्यार करते थे। रानी भी बराबर प्यार करती थी। अब चुनाव करें तो करें कैसे? एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सारे राजकुमारों को कह बुलवाया और उन्हें कहा कि आज शाम को आप सभी को राजमहल के प्रांगण में आना है। वहां आपके लिए एक भव्य भोज की तैयारी की गई है। सारे राजकुमारों ने कहा, ठीक है जी महाराज। और जैसा कि निश्चित किया गया था, निश्चित समय पर सारे राजकुमार वहां पहुंच भी गए। 56 पकवान वाली थाली का आयोजन किया गया, सबके बैठने का अरेंजमेंट किया गया, सब वहां पहुंच गए, पर राजा साहब वहां नहीं पधारे। वो दूर खड़े एक झरोखे से सब देख रहे थे। जैसे ही सारे राजकुमार अपने स्थान पर विराजमान हो गए, वैसे ही राजा के सैनिकों ने, सेवकों ने कुछ शिकारी कुत्ते वहां छोड़ दिए। जैसे ही शिकारी कुत्ते आए, कुछ राजकुमारों को गुस्सा आया, वो वहां से चले गए। कुछ डर गए तो वहां से चले गए, कुछ घबरा गए, कुछ गुस्से में उठ के उन शिकारी कुत्तों का शिकार करने लग गए। वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सबको ये लग रहा था कि भोज के बाद जरूर कोई प्रतियोगिता होगी जिसमें चुनाव किया जाएगा। अब जब भोज ही नहीं हुआ तो प्रतियोगिता भी नहीं हुई होगी, तो अब कैसे करेंगे राजा जी चुनाव? सब लोग ऐसे सोच ही रहे थे कि इतने में अनाउंसमेंट हो गई कि शाम को थोड़ी देर बाद सभा का आयोजन किया जाएगा और उस सभा में उत्तराधिकारी का नाम घोषित किया जाएगा। चुनाव कर लिया गया है। थोड़ी देर बाद सभा लगी, मंत्री आए, सब बैठे, राजा साहब भी आए। उन्होंने सभी राजकुमारों को बुलाया। एक एक करके वो सबसे पूछने लगे। राजा जी ने सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र से पूछा, राजकुमार जी भोज कैसा लगा? राजकुमार जी ने जवाब दिया कि महाराज जी आप तो सब जानते हैं, आप तो वहां पर थे। हमारे ये पहरेदार इतने निकम्मे हो गए हैं कि ये कुछ शिकारी कुत्तों का शिकार नहीं कर पाए। भोज तो हम कर ही नहीं पाए, हम तो शिकार पर निकल गए। एक एक करके राजा ने सबसे जवाब मांगा। किसी ने कहा वो घबरा गए, किसी ने कहा डर गए। गोल गोल आंसर देते रहे, घुमा घुमा कर कुछ न कुछ जवाब उन्होंने दिया। लेकिन एक राजकुमार थे जिनका नाम था शांतनु। उन्होंने कहा, महाराज जी भोजन बहुत स्वादिष्ट था और आपका इतने अच्छे भोग को आयोजन करने का, 56 पकवान खिलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। राजा साहब ने कहा, शांतनु पूरी सभा को बताइए आपने भोज किया तो कैसे किया? इतने में राजकुमार शांतनु बोलते हैं कि राजा जी जैसे ही कोई शिकारी कुत्ता मेरे पास आता, मैं वैसे ही एक थाली उसके आगे कर देता था। वहां पर 56 भोग की 99 थाली खाली पड़ी थी। बस इसी का हमने फायदा उठाया और जैसे ही कोई आता शिकारी कुत्ता, हम एक थाली उसके आगे कर देते, वो खाने में व्यस्त हो जाता और हम भी अपना खाना खाते रहे, अपना भोज करते रहे। उनकी ये बात सुनकर सभा में तालियां बजने लगी और राजा जी ने ऐलान कर दिया कि अगले राजा का नाम शांतनु है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि समस्याएं हर किसी की जिंदगी में हैं।
ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी जिंदगी में समस्या ना हो। किसी के में कोई समस्या है तो किसी की में कोई समस्या है। हमें समस्याओं का रोना नहीं रोना है, हमें उसके समाधान पर फोकस करना है। हमें प्रॉब्लम्स पर बात नहीं करनी है, हमें सॉल्यूशंस पर बात करनी है। हमारे आसपास ही होती हैं उसकी सॉल्यूशंस, हमें सिर्फ उन्हें ढूंढने की देर है। सिर्फ सॉल्यूशंस पर फोकस करना है। ये इस स्टोरी का एक खास मकसद है, एक मॉरल एजुकेशन है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चों, आपको तो स्पेशली ध्यान देना चाहिए। आप भविष्य हो भारत का, इंडिया का। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो कंसंट्रेट ऑन द सॉल्यूशंस rather than problems. Discuss solutions, not problems. Okay? किसी महान ने बड़ी खूब बात कही है, यूं ही नहीं होती तब्दीलियां जिंदगी में, यूं ही नहीं होती तब्दीलियां जिंदगी में, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। So my students, focus on all the 8 points which I have told you today to make your summer vacation very fruitful, productive, meaningful and memorable. Wish you all a very, very happy summer vacations. God bless you all. Thank you.